Okay, class lecture number 14, Uniform Civil Code. I have comments in our last video. However, abruptly after around 46-47 minutes, I don't know what went wrong with the technology, and the recording suddenly stopped. Something went wrong, I don't know. So that video was abruptly stopped. So I continue from the same point. I was referring to Article 25, which is the biggest hurdle in enacting a uniform civil code under Article 44. Section 25 guarantees freedom of conscience and profession, practice and propagation of religion. However, see, religious activities which are associated with or need to be exempted from this guarantee. It could therefore be plausibly argued that personal laws which pertain to secular activities and hence fall within the domain or within the competence of the regulatory power of the state. Now, what do we mean by a secular activity? See, secular activity, I am not on the aspect of definition of Congress. Being anti-Hindu is sometimes secular for them, or even modern educated Hindus consider that unless and until they don't have anti-Hindu thoughts, they don't look progressive. So if you talk about something which is pertaining or dearer to Hindus, that is considered to be fundamentalist. But see, that is politics. We are not concerned with that. Neither am I impressed by the definition of Congress which has been purported so many times, or that has been, the agenda that has been pressed, and they have been very, what you can say, in a kind of biased approach towards Hindus, and they have been favoring more the Muslim community or the minorities, especially the Muslims. That is the basic problem with India. Because see, question number one, if we talk about religion and country, the question will always remain that once partition was effected and Pakistan was separated from India and a separate country was created specially for Muslims, then why Muslims remained in India? This is the biggest question. We are not concerned with politics, neither I am asking any, or my speech should not, or what I am talking should not be misconstrued. But this question will always be there, that if a separate country was formed for on basis of religion, then at that point of time all Muslims should have actually migrated to Pakistan, that apart. But that didn't happen, and we adopted a secular approach. That is fine with us. And see, when it comes to India, initially we were invaded by the Mughals, so यहाँ पे Islam आ गया. Then we were invaded by the Britishers, Portuguese, so many people came, and religions यहाँ पे एक एक आते गए, and Christians also आ गए. Now see, so today we can't ask any particular community कि आप यहाँ से निकल जाओ. Okay, they are Indians, no issues about that. And I personally don't believe in asking anybody to live, because now they have been living here so many years. So ठीक है. But the CA and NRC is very, very important. Unauthorized citizens and those who are illegally kind of somebody who have encroached in our country, they need to live. That is a fact. So CA and NRC has to be implemented. That is a fact. Now see, what do I mean by religious, what do I mean by secular activities? Secular activities in the sense that the aspects or issues which will affect each and every of us being simply human beings or being Indians, irrespective of the fact whether you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Christian, you are a Sikh, or you are a Jew by any other religion. Now see, so एक्टिविटीज़ लाइक आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करो, शादी तो होने वाली है, सो मैरिज इज सेक्युलर. आप कोई भी रिलीजन को बिलोंग करो, सक्सेशन तो होने वाला है. वंस द पेरेंट्स पास है, उनका प्रॉपर्टी उनके बच्चों को ही जाना चाहिए. नाउ सी, द सिस्टम ऑफ जॉइंट फैमिली इज सो नाइसली डेवलप्ड विद इन हिंदूज. डू मुस्लिम्स बिलीव इन अ जॉइंट फैमिली? डू क्रिश्चियंस बिलीव इन जॉइंट फैमिली? इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली, जैसा HUF है अंडर द हिंदू लॉ, अंडर द मिताक्षर और दया भागा, जैसा अनकोडिफाइड लॉ में हमको पढ़ना है.
Now see, those systems are not there. They don't believe in joint family system. अगर joint family system के ऊपर आप believe नहीं करते हो तो joint family property भी नहीं हो सकती है. So वहाँ पे थोड़े थोड़े issues है जो which needs to be properly channelized. Then going further, adoption. अगर बच्चे नहीं हो रहे तो अडॉप्ट करने का राइट नहीं मिलेगा. सी, हिंदू फिलोसॉफी बिलीव्स इन एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन, बट Muslims don't believe in adoption. As per their belief, बच्चे अल्लाह की देन है. अगर अल्लाह ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो नहीं दिया, नहीं होंगे. So they don't believe in adopting a child of some other parent and to consider him as your own. Adoption का philosophy कहाँ था, क्या था, not कहाँ था, क्या था. See, adoption, why adoption का ये आ गया, चलन आ गया, क्योंकि जिनको बच्चे नहीं हो रहे, एंड एडॉप्शन में मैंने वो प्रॉपरली डील किया हुआ है, दैट सी मेडिकल साइंस वॉज नॉट दैट प्रोग्रेस, तो कुछ ना कुछ इशू है, तो बच्चे नहीं होते थे. सो देर वेर मोर और देर वॉज अ मोर हायर परसेंटेज ऑफ चाइल्डलेस कपल्स. तो चाइल्डलेस कपल्स को बच्चे अडॉप्ट करने का राइट होना चाहिए. एंड उसमें दो रिलीजियस बिलीव्स थे. नंबर वन, दैट मेरा वंश आगे चलना चाहिए, माई रेस मस्ट गो ऑन, एंड not race, my next generation must come into existence. And number two, as per the Hindu philosophy, unless and until एक बार आदमी की मौत हो गई, after the death, उसकी जो चिता होती है, जो पायर बोलते हैं, प्रेयर, उसको जब तक अग्नि, that prayer is not lighted by his son, उसको मोक्ष नहीं मिलेगा. तो जब तक मेरी चिता को आग मेरा बच्चा नहीं देगा, बच्चा, एंड दैट राइट वॉज गिवन टू द सन ओनली, तो नेसेसरीली सन वॉज ओनली एडॉप्टेड. वाई? सी, लड़की को अडॉप्ट करके क्या करोगे? ये दो पर्पज आपके सर्व नहीं होंगे इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट पर्पज. टुडे अ गर्ल चाइल्ड इज मोर प्रिफर्ड फॉर एडॉप्शन. दैट अपार्ट, वी आर नॉट ऑन दैट एस्पेक्ट. तो सक्सेशन, एडॉप्शन, देन दीज आर द रियल सेक्युलर इशूज. आई विल लिस्ट इट आउट. Okay, now see, first let us understand. See, when you are writing on a uniform civil code, firstly you write down what is a uniform civil code. Then point number two, that uniform civil code was inserted into the directive principles of state policy, that is part 4, and made not enforceable because there was lot of objection from the minority, especially the Muslim community. Then see, what purpose will serve. तो आपको ये see, आपको आपका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा. What is uniform civil code? We don't have a uniform civil code. अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो क्या चेंजेस होंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा. एंड देन यू कैन राइट डाउन योर ओन व्हाट यू कैन से व्यू और योर ओन कंक्लूजन, वेदर यू सपोर्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड और यू अपोज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, या कोई न्यूट्रल भी हो सकता है कि करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है. सो यू कैन राइट डाउन योर कंक्लूजन दैट वे. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. उसमें वो लिस्ट हो जाएगा व्हाट आर द सेक्युलर एक्टिविटीज एज पर माय जजमेंट. व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. सिंस द पर्सन लॉज ऑफ ईच रिलीजन कंटेन सेपरेट इंग्रेडिएंट्स, द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स and religious principles of different communities which are existing in India. So now see, these are the actual what you can say secular activities. Now what do I mean by secular? That these particular aspects, these particular issues will concern you irrespective of the fact whether you are a Hindu, you are a Muslim, you are a Christian, you are a Sikh, you are a Buddha, or you are a Jew, or even a Parsi. So that will not, your religion is immaterial, inconsequential. ये आपको issues affect करेंगे. Marriage number 1, divorce number 2, then succession number 3, then number 4 inheritance, and number 5 maintenance. So देखो, मैरिज तो हर एक आदमी को करना ही है और होता ही है. अगर मैरिज होगा तो डिवोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज
आजकल तो डिवोर्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, एंड डिवोर्स का व्हाट यू कैन से परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. Almost if you see percentage wise, at least 30 to 40% of marriages are ending in divorce. Because see, basic problem क्या हुआ है, this I have dealt with in the Hindu Marriage Act. जब भी वो डिस्कस किया था तभी मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात की है. लेकिन पीपल डोंट हैव टॉलरेंस फॉर ईच अदर एंड डोंट हैव पेशेंस कि चलो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, बाद में सेटल हो जाएगा. तो अराउंड से 20-30 ईयर्स अगो, 40 ईयर्स अगो ना ऐसा चलन था कि एवरी जो जिसके शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, दे यूज्ड टू उसको थोड़ी देर तक सहन करते थे. दे यूज्ड टू टॉलरेट दैट एंड देन एवरीथिंग यूज्ड टू गो. लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, आरे को कारे, मराठी त्याला आरेला कारे म्हणतात, बोला तो नहीं. आजकल क्या होता है बच्चों को, एंड इन अ वे इवन आई विल टेल माई डॉटर इन दैट वे, आई हैव अ डॉटर, तो मैं भी उसको वही बोलूँगा. तो अभी कैसा होता है कि बच्ची को सिखा के भेजते हैं कि उसको मराठी में बोलते हैं पड़ती बाजू, डोंट सेटल, पीछे मत आओ, हम किसी से कम नहीं है, तो एवरी टाइम सेटल करने का तुमको ही ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम वापस आ जाओ, हम यहाँ पे तुम्हारे लिए बैठे हैं. अभी आप बच्चे को ऐसे ही बोल के भेजोगे तो वो एडजस्ट करेगी ही नहीं. हाँ, उसको आप ये बोलो कि तुम पहले एडजस्ट करो, ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो हम लोग हैं, अगर तुमको तकलीफ हो रही है तो ठीक है. लेकिन यहाँ पे आप बोल के ही भेजते हो डैट यू डोंट टेक वन स्टेप, आप पीछे मत आओ, क्योंकि हम किसी से कम नहीं. पहले कैसे लड़की को बोलते थे अरे मुलीची बाजू है, थोड़ा समझ के लो, थोड़ा टॉलरेंस रखो, पेशेंस रखो, वो एक हो गया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई डिवोर्स इज ऑन अ रैम्पेंट इंक्रीज is the women liberalization. That is a good thing. Women need to liberalize themselves, education wise, socially, financially. See, पहले कुछ सालों तक the percentage of females working was quite less. तो नेचुरली मेंटेनेंस, बच्चों का सब देखने का है, तो उसके लिए पति के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था. आज की औरत जो कमा रही है वो बोलते थे ना तेरे पैसे की भी ज़रूरत नहीं, तू निकल जाओ, तेरा पैसा भी निकल जाए, ज़रूरत नहीं, आई एम सफिशिएंट टू अर्न फॉर माई चिल्ड्रन एंड आई विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. तो तुम्हारा इसका भी जरूरत है. तो वो भी इशू कम हो गया, तो वो भी कंट्रोवर्सी कम हो गया. सो दीज आर द रियल व्हाट यू कैन से कंट्रोवर्शियल इशूज विच आर एक्चुअली सिक्योर. नंबर 1 मैरिज, नंबर 2 डिवोर्स, नंबर 3 सक्सेशन. अभी हर एक आदमी जन्म लेगा वो मरेगा तो सी एज पर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई भी लैंडेड प्रॉपर्टी या कोई भी इवन इमूवेबल प्रॉपर्टी एज सच, इमूवेबल और मूवेबल, कैनॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड. उसका कोई वारस नहीं है या छोड़ नहीं सकते, दैट कैनॉट बी अबैंडन. तो व्हेन वी डू आवर सक्सेशन एक्ट वी विल सी दैट आफ्टर द एंटायर लिस्ट ऑफ हु आर लीगल हेयर्स, उसमें क्लास 1 हेयर्स आते हैं पहले एंड देन क्लास 2 हेयर्स. तो क्लास 1 हेयर हो गए, क्लास 2 हेयर्स का भी पूरा लिस्ट खत्म हो गया. एंड इफ देर इज नो लीगल हेयर, अगर कोई वारस नहीं है, that property will go to the government. Then government will be your successor and government will take over that property and that will become त्याला मराठी सरकारी जमा म्हणतात, सरकार जमा. That is vested in the government, it becomes government's property. Okay. So now let us see what will be the ingredients of Uniform Civil Code. Again I repeat, since the personal laws of each religion contain separate ingredients, the Uniform Civil Code will need to strike a balance between the protection of fundamental rights and religious principles of different communities. So marriage, divorce, succession, inheritance and maintenance can be matters of secular nature and law can regulate them. अगर ये सब चीज़ें रेगुलेट हो सकती है तो पर्सनल लॉज में रह ही गया. एंड देयर इज नथिंग सैक्रोसेंट अबाउट एनी लॉ. हिंदू लॉ का भी आप देखो, सोर्सेज में दूसरे वीडियो में डील कर रहा हूँ. नहीं, सोर्सेज ऑफ लॉ हैव स्टार्टेड इन द और लाइव सेशंस जो हम लोग गूगल मीट पे मिलते हैं, उसमें मैंने चालू किया है. सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में मैंने आपको बताया था एंशिएंट सोर्सेस कौन सा है, पहले श्रुति एंड देन स्मृति. तो श्रुति क्या है, दैट वाज लाइक वो टाइम पे एक हॉटलाइन एग्जिस्ट करता था एंड डायरेक्ट कनेक्शन था बिटवीन द, देयर वाज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द साधु जो वो टाइम पे थे, जो भी महर्षि थे, ऋषि मुनि थे, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था और भगवान ने उनको डायरेक्टि बताया कि बाबा ये धर्म में होना चाहिए. वो श्रुति हो गया. फिर वो जो ये थे ऋषि मुनि थे, उन्होंने उसको लिखा याद करके. सो दैट इज़ द स्मृति. तो श्रुति में से स्मृति निकला एंड वहाँ से फिर चारों वेद निकले, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद. और एंटायर थिंग्स आते तो कुछ एडिशंस, कुछ कॉमेंट्रीज. तो एग्जैक्टली तो वर्बैटम तो प्रोड्यूस नहीं हो सकता है.
तो कुछ चीज़ें उसमें बदलते बदलते गई एंड सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ आ गया. नाउ सी व्हाट कैन बी सेक्युलर needs to be codified. So there is nothing sacrosanct about it. What is the meaning of sacrosanct? मतलब जो ऊपर से पड़ा, वो बोलते हैं ना आसमान से टपका और खजूर में अटका. Something very divine which cannot be changed by anybody, not even the parliament. So there is nothing sacrosanct about that. And to be very honest with you, majority of the countries who are Muslim countries, जो मुस्लिम रिलीजन को एंडोर्स करते हैं, दे कॉल देमसेल्फ मुस्लिम कंट्री, हैव कोडिफाइड देयर लॉज. सी हमारा जो नेबर है, तुच्छी सी कंट्री है पाकिस्तान, एंड उनका मतलब वर्ल्ड एग्जिस्टेंस भी कुछ नहीं है, एकदम भिखारी के जैसे हो गए उनके हालत आज. बट इवन दे हैव कोडिफाइड देयर लॉज. एंड ट्रिपल तलाक वाज बैन इज बैंड इन पाकिस्तान सिंस मैंने क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सी जो एक किस्म का ये है ना, that there is arbitrariness in giving divorce. डिवोर्स देते वक्त हस्बैंड अगर कुछ कारण ना भी दे तो भी चलेगा. लेकिन पाकिस्तान में व्हाट दे हैव डन, यू नो, दे हैव मेड अ बोर्ड. तो वो बोर्ड के पास जाना पड़ता है पति पत्नी को, उनका मैटर काउंसलिंग के जैसा वहाँ पे होता है. एंड देन अगर सेटलमेंट होता है तो दे विल ट्रे आउट, एंड इफ नहीं हो रहा है देन ओनली डिवोर्स कैन बी ग्रांटेड. यहाँ पे क्या होता है, तलाक तलाक तलाक, एक बार ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो that was permissible till almost last year. अभी recently that law has been passed which has banned or prohibited the pronouncement of triple talaq at one single meet. And look how the way that community is misguided and they are opposing the CAA and NRC. Just see how that things are being motivated. And वहाँ पे क्या होता ना, देखो, without any personal comments against the Muslim community, the education rate is very low. Then क्या होता है ना, उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं बीइंग अ माइनॉरिटी. सो उनका जो रिलीजन है ना उसका बहुत इंडल्जेंस है. तो समझो अभी देखो बच्चे यहाँ पे, अभी हिंदू आदमी के आज के तारीख में एक आजकल तो 2 बच्चे भी बहुत लग्जरी हो गई है. एक बच्चे पे आदमी रुक जाते हैं. तो अगर 2 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, लेकिन मुस्लिम में आज आप भी देखो 7-8 बच्चे कर देते हैं, हो जाते हैं. एंड दे उनका मेन वही है कि आप कंट्रीब्यूट करो, बिकॉज सी देयर एम इज़ टू गो फ्रॉम माइनॉरिटी टू मेजॉरिटी. दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. तो अभी 7-8 बच्चे अगर मैं पैदा कर रहा हूँ तो मैं हर एक बच्चे को कैसे पढ़ा पाऊँगा, कैसे उनकी ज़रूरतें पूरे कर पाऊँगा. तो मुझे उनको कहाँ भेजना पड़ेगा, उनको कोई मदरसा में भेजना पड़ेगा. सो वहाँ पे जो है तो रिलीजियस होल्ड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है. सी अगर कोई हिंदू आदमी, जैसा ना इवन इंक्लूडिंग मी, अगर कोई धर्मगुरु आके मुझे कुछ उल्टी सीधी बातें सिखाता, मैं नहीं मानूंगा. इवन टुडे, अर्लियर इवन आई हैड दैट रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन माई माइंड. तो मैं हमेशा एंटी हिंदू सोचता था कि प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा है. लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने होश संभाला, मैंने आई बिकेम अ लॉयर, तो मैंने एक एक चीज़ देखा. एंड एक एक चीज़ जैसे मैंने देखा तो आई कुड सी एंड इन अंडरस्टैंड ये माइनॉरिटी इज़ नो माइनॉरिटी एट ऑल, एक्चुअली इन रियल सेंस. एंड इन अ वे वो जो एजेंडा प्रेस किया जा रहा है विच आई कैन डिस्कस इन क्लासरूम, तो उसके वजह से मेरे थॉट्स थोड़े से चेंज हो गए. एंड आई बिकेम टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी, और मैं हिंदुज़म में ज़्यादा बिलीव करने लगा. लेकिन आज भी इवन आफ्टर चेंज ऑफ माइंड टू दैट एक्सटेंट, इवन टुडे अगर आज मुझे आके कोई बोले कि सामने वाला मुस्लिम है, उसको गाली दो और उसको आप नफरत करो, मुझसे नहीं होगा. ओनली बिकॉज इज़ अ मुस्लिम. हाँ, अगर वो मुझे तकलीफ देता है, धर्म को गाली देता है, कुछ उल्टी सीधे बातें बोलता है, तो नेचुरली एक किस्म का ये तैयार होगा. लेकिन इफ़ समबडी आस्क मी टू हेट एनी अदर पर्सन ओनली बिकॉज इज़ अ मुस्लिम, वो मुझसे नहीं होगा. तो वो थोड़ा सा कैसा है ना, उनको हो जाता है. सी हिंदूज दे हेट, आई डोंट नो व्हाई. लेट्स नॉट गो इनटू दैट एस्पेक्ट बिकॉज दिस इज़ अ लेक्चर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड. और यूनिफॉर्म सिविल कोड में उनका अपोजिशन, जैसा अभी समझो हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज आज भी ऑफिशियल लैंग्वेज ही है ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज़ नॉट येट एक्चुअली एंड लीगली अ नेशनल लैंग्वेज. तो राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई है ही नहीं. ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है. तो बहुत सारे जो GR होते हैं या गवर्नमेंट के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हिंदी में होते हैं. मराठी महाराष्ट्रात मराठी डॉक्युमेंट्स होतात. बट हिंदी इज़ नॉट इन अ ट्रू सेंस अ नेशनल लैंग्वेज बिकॉज
देखो कितना अपोजिशन साउथ की तरफ से. रिसेंटली दे हैव अगेन सेड दैट नो वी आर हैप्पी विद द टू लैंग्वेज पॉलिसी. तो जस्ट सी हाउ वे दे आर वेरी रिलक्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टुवर्ड्स अपोजिशन ऑफ हिंदी. वी डोंट वांट हिंदी. हिंदी हमको राष्ट्रीय भाषा चाहिए ही नहीं. सिमिलर अप्रोच मुस्लिम्स का है कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए ही नहीं. लेकिन देखो इसमें क्या होता है ना, उसके कुछ फ़ायदे तो ज़रूर है. अभी ये फ़ायदे हैं दैट ऑल दीज मैटर्स विच वी आर डिस्कसिंग अगेन एंड अगेन, दैट देर विल बी अ यूनिफॉर्म लॉ विच इज़ एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल कम्युनिटीज़ irrespective of their religion with respect to marriage, divorce, succession, inheritance and maintenance. तो ये अच्छा नहीं है कि सबको एक ही लॉ एप्लीकेबल होगा. हाँ, नाउ सी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो हमने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे तो कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा है. सो देयर द मुस्लिम कम्युनिटी इज नॉट सेइंग कि हमको शरिया लॉ चाहिए, क्योंकि शरिया लॉ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स है. चोरी करते पकड़ा गया तो हाथ काट डालो, अगर बलात्कार की सज़ा में सज़ा हुई सीधा जान से मार डालो. तो अगर कुछ मुस्लिम कंट्रोल्स को आप देखो, आज भी वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस ऑफ रेप, शुक्रवार उनका बहुत ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जुम्मा बोलते हैं, पवित्र दिन होता है. जैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मंगलवार को बिलीव करते हैं, तो उस दिन जब ही नमाज होता है ना, उसके बाद में आके पत्थर से उसको मार डालते हैं. पत्थर मार मार के पीपल आर अलाउड टू किल दैट पर्सन. या एडल्ट्री होगा तो वो लेडी को भी उसी तरीके से मारा जाता है. दैट्स अ पार्ट. सो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. सो बेसिकली क्या रहता है कि वहाँ पे आज भी उस किस्म के बारबरिक लॉज है जो शरिया खाली सिविल लॉज में आप इम्प्लीमेंट करने को देख रहे हो. चाहिए तो वो भी इम्प्लीमेंट करके देखो, तो आर्गुमेंट आप जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा. सो लेट अस रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड. नाउ सी देन वी हैव टू डिस्कस सम लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देन वी विल सी के व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्रॉट. नाउ सी आई वाज ऑन द एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 25, जहाँ पे मेरा लास्ट लेक्चर एब्रप्टली ख़त्म हो गया था. आई गो लेट अस रिपीट एंड reiterate दैट. आर्टिकल 25 guarantees freedom of conscience and profession, practice and propagation of religion. तो देखो क्या होता है ना, इसमें फोर्स कन्वर्जन्स नहीं आएंगे. देर आर लॉट ऑफ फोर्स कन्वर्जन्स टेकन प्लेस इन इंडिया and lot of Christian missionaries are also accused of doing this kind of conversions. कोर्शन या तो फिर अनडू इन्फ्लुएंस किया जाता है और उनको मन यू प्रिवेल अपॉन देयर माइंड एंड पीपल आर कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. सी देखो अभी क्या होता है ना, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्शन. सी द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर फ्रॉम साउथ मिस्टर A.R. रहमान, एक्चुअली इज अ बॉर्न हिंदू. उसका नाम दिलीप कुमार है. बट देन ही सेड वन फाइन डे आई वॉज स्लीपिंग एंड आई गॉट अ ड्रीम, और मेरे इसमें क्या सपने में कुछ हो गया और उसको वो अंदर से फीलिंग आ गया दैट ही मस्ट बिकम अ मुस्लिम एंड ही कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड फ्रॉम दिलीप कुमार ही बिकेम A.R. रहमान. दैट इज़ फाइन, दैट हैज़ बीन डन बाय हिम आउट ऑफ हिज ओन वोल्यूशन. सो ये जो रिलीजन चूज करने का राइट है ना, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट. तो अगर मैं भी कल चाहूँ कि मैं मुस्लिम, क्रिश्चियन या कुछ और बन जाऊँ, नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट. लेकिन अगर फोर्सिबल होता है, जैसा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ था, शिवाजी महाराज के टाइम पे हुआ था कि फोर्सिबली मुस्लिम्स किया जा रहा था, या जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो रहा था कि लोगों को फोर्सिबली आउट ऑफ फोर्स उनको क्रिश्चियन कन्वर्ट करो, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाओ, तो ये थोड़े से इश्यूज होते हैं. सो ये तो पहले से आपको पर्टिकुलर कोई रिलीजन में जाओ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. वाई बिकॉज द सिविल लॉज विल बी सेम. अभी देखो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई एवरी हिंदू मेल इज एनवियस ऑफ अ मुस्लिम मेल इज़ द रीज़न दैट देखो वो 4 बीवियाँ रख सकता है, हमको परमिशन है, हमको एक ही बीवी की परमिशन है. सो दैट इज़ अ इंसेंटिव और दैट इज़ अ थिंग विच मेरे मन में आता है कि मैं भी मुस्लिम बन जाऊँ तो मेरी भी दूसरी शादी हो सकती है. एंड दैट वॉज डन बाय सो मेनी सो कॉल्ड फेमस पीपल. धर्मेंद्र, फिल्म स्टार धर्मेंद्र and Hema Malini converted to Islam to facilitate a second marriage with Hema Malini because पहले शादी उसकी हुई थी, पहले बीवी से उसको वो सनी देओल और बॉबी देओल 2 बच्चे थे, और उसको पहले बीवी को छोड़े बगैर या कुछ प्रॉब्लम था एंड ही डिड नॉट वांटेड टू डिवोर्स एंड गेट मैरिड. सेम थिंग वाज डन बाय दैट महेश भट्ट. ही इज़ बॉर्न ऑफ अ हिंदू फादर एंड ऑफ अ मुस्लिम मदर. सो आधा मुस्लिम तो वो पहले से ही था जन्म से. And he wanted to marry Soni Razdan,
हु इज़ मदर ऑफ दैट आलिया भट्ट, तो पूजा भट्ट की माँ और दूसरा शायद भाई है उसको, उसका नाम आई डोंट रिमेम्बर, तो उन दोनों को वो वाइफ को डिवोर्स दिए बगैर उसको शादी करनी थी. दैट इज द रीजन वाई महेश भट्ट कन्वर्टेड टू इस्लाम. ही एक्सेप्टेड मुस्लिम रिलीजन. दैट सोनी राजदान हु इज मदर ऑफ आलिया भट्ट, शी ऑल्सो बिकेम मुस्लिम एंड दे परफॉर्म्ड निकाह एंड सेकंड मैरिज हो गया. सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है कि जहाँ पे कन्वर्जेंस किए जाते हैं. देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन दैट ऑफ सरला मुदगुल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ओके, हावेवर secular activity with religious practice must be exempted from this guarantee. It could therefore be plausibly argued that personal laws pertaining to secular activity, जो हमने अभी डिस्कस किए, and hence they fall within the regulatory power of the state. So state must have powers to regulate these issues. However, unluckily, not much progress has so far been made towards achieving the ideal of a uniform civil code. And as such, uniform civil code remains